اور اس کی 6 آیت سے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے. ایک ہی آیت کے اوپر میڈیٹیٹ کریں گے. بائبل مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا نامہ باب اور اس کی 6 آیت. اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. اس آیت کا دوسرا حصہ میں پڑھنا چاہوں گا. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. سلامی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی پاکیزہ آپ کی سوچ ہوگی اتنی ہی پاکیزہ آپ کی اسپرٹ بھی ہوگی. انڈرسٹینڈ کریں؟ جتنی پاکیزہ آپ کی سوچ ہوگی اتنی ہی پاکیزہ آپ کی روح بھی ہوگی، اور جتنی پاکیزہ آپ کی روح ہوگی اتنا ہی مسا آپ کی زندگی پر خدا کا ٹھہرے گا. ہاللیلویا. آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے مسا میں کھو جائیں. ہم چاہتے ہیں خدا کی بلیسنگز ہماری زندگی میں سے نظر آئے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے سر پر ہاتھ رکھے تو وہ ہیل ہونا شروع ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت خداوند یسوع مسیح کی طرح ہو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جتنی دعائیں یسوع مسیح کرتا تھا اتنی دعائیں زندگی ہماری بھی ہو. جتنی پاکیزہ زندگی یسوع مسیح کی تھی اتنی پاکیزہ زندگی ہماری بھی ہو. اگر آپ یسوع مسیح جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہیلنگ منسٹری میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پروفیٹک آپ منسٹری میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اتنی پریئرز بھی کرنی پڑے گی، اتنی دعائیں بھی کرنی پڑیں گی. جتنی پاکیزہ آپ کی سوچ ہوگی اتنی ہی پاکیزہ آپ کی روح بھی ہوگی، اور جتنی پاکیزہ آپ کی روح ہوگی اتنا ہی مسا خدا کا آپ کی زندگی پر ٹھہرے گا. اور جب مسا آپ کی زندگی پر ہوگا تو انائٹنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. جب آپ کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں گے یا دور ہی سے دعا کریں گے تو مسا اس کی زندگی پر بھی ٹھہرے گا، خدا اس کو بھی ٹچ کرے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. آج کا جو بڑا خوبصورت ٹاپک جس کے اوپر میں آپ کی توجہ چند لمحات کے لیے مرکوز کروانا چاہتا ہوں وہ ہے واٹ از ایٹرنٹی. ابدیت کیا ہے؟ ابدیت کیا ہے؟ میں یہ ابھی نہیں بتاؤں گا کہ ابدیت میں ہم نے انٹر کیسے ہونا ہے. میں آج ابدیت کے تعلق سے، ایٹرنٹی کے تعلق سے آپ کو چند اہم باتیں بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ابدیت کو بچپن سے لفظ سنتے آ رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر اقتباس بھی پڑھا ہے. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت کریمہ ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے پرسنالٹی کو پیش کر رہی ہے، پریزنٹ کر رہی ہے. یہ در حقیقت یہ سایہ پروکسی کر رہا ہے کہ ایک جب ہم اس کی 6 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو بیٹا بخشا گیا. انڈرسٹینڈ کریں. اور بیٹے کی خاصیت کیا ہوگی کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی کہ وہ بادشاہ ہی پیدا ہوگا. وہ بادشاہ اکثر بادشاہ بنائے جاتے ہیں. یہاں پر ایک ایسا بادشاہ ہے جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ باپ کے پیٹ ہی سے بادشاہ پر مقرر پیدا ہوا ہے، اور اس کی بادشاہت کچھ چند ٹائم کے لیے نہیں ہے. جیسے ایٹرنٹی ہے اسی طرح اس کی بادشاہت بھی ابدی ہے. ہاللیلویا. اس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے. اور یہاں پر جو بادشاہ ہے وہ آپ کا اور میرا اور خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. یہاں پر جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں جو اصلی بھی ہے، جو ابدی بھی ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی یسوع تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یسوع ہوگا. کیا ٹاپک ہے جی آج کا ہمارا؟ واٹ از
इटर्निटी। अब्दियत क्या है? क्या टॉपिक है जी? जोर से बोले, क्या टॉपिक है आज का हमारा? लफ्ज अब्दियत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है हमेशगी, यानी एवरलास्टिंग, बकाए दवाम के है। अब्दियत को इंग्लिश में इटर्निटी या एवरलास्टिंग भी कहते हैं। एक वक्त था जब वक्त का आगाज हुआ, एक वक्त था जब वक्त का आगाज हुआ, और एक वक्त होगा जब वक्त खत्म हो जाएगा, उसका इख्तिताम हो जाएगा। ये मेरे दो हाथ है, अंडरस्टैंड करें। एक वक्त था, मेरे हाथों को देखना, बॉडी लैंग्वेज को देखना, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा। एक वक्त था जब वक्त का आगाज हुआ, एक वक्त था जब वक्त का आगाज हुआ, और एक वक्त होगा जब वक्त खत्म हो जाएगा, उसका इख्तिताम हो जाएगा। और जो चीज इस दौर से पहले की है, और जो चीज यानी वक्त की बात कर रहा हूं, और जो चीज जो दौर से यानी इस वक्त से पहले की है, और जो वक्त यानी इस दौर में है, जो इस दौर के बाद होगा, वो अब्दियत है। बात समझ आ रही? दोबारा मैं जुमला दोहराता हूं। और जो चीज जो दौर इस वक्त से पहले का है, और जो चीज या दौर इस वक्त से पहले का है, और जो वक्त या दौर इस वक्त के बाद का होगा, वो अब्दियत है। कुछ समझ नहीं आई? इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि जो चीज वक्त में बनती है, इस चीज को हमें मलहूज़े खातिर लाने की जरूरत है कि जो चीज वक्त में बनती है वो वक्त में ही खत्म हो जाती है। जिस तरह ये कायनात वजूद में आई है, ये वक्त में बनी है, और वक्त में ही ये खत्म हो जाएगी। हम इस वक्त में बनाए गए हैं, हम इस वक्त में खत्म हो जाएंगे। हम अब्दी नहीं है, हम अब्दी। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसे खुदा के मानने वाली कौम है जो अब्दियत का बाप है। हालेलुया। अब्दियत, इससे पहले के टाइम शुरू होता, इससे पहले के इब्तिदा होती, इससे पहले के कायनात को खलक किया जाता, इससे पहले भी खुदा मौजूद था। हालेलुया। मेरा गला भी खराब है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तुलसियों का खत जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा, जब हम वो पढ़ते हैं तो वहां पर यूं पढ़ ही लेते हैं उसको। मुकद्दस पौलुस रसूल का तुलसियों के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है। खुदा यीशु मसीह की शान मुबारका के बारे में कहा जा रहा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत, जिस खुदा को हम देख नहीं सकते हैं, वो उस खुदा की सूरत पर है, और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है, यानी वो पैदा हो चुका था, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई। और साथ सारी आयत पढ़ते हैं, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। इसलिए यशायाह नबी ये बात करता है कि वो अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा है, क्योंकि ये सारी चीजों को क्रिएट करने वाला, इन सारी चीजों को तख्लीक करने वाला, और इस सारी चीजों का मंबा, सरचश्मा आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। इससे पहले कुछ होता, यीशु था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी आपका और मेरा यीशु होगा। हालेलुया। वो अब्दियत का बाप है। एक बात तो याद रखना है, वो अब्दियत का बाप है, हमारा बाप नहीं है। हमारा
हमारा बाप खुदा बाप है। अंडरस्टैंड? यीशु हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, वो हमारा बाप नहीं है। मैंने ये बताया जो चीज वक्त में बनती है उसका खात्मा हो सकता है, वो तबाह हो सकती है, वो बर्बाद हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन जो वक्तों और जमानों की कैद से बड़ी जुबान है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा की इब्तिदा और असल की असलियत से पहले मौजूद था। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है कि प्री एक्सिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इससे पहले कि कुछ होता यीशु एक्सिस्ट करता था, वो मौजूद था, क्योंकि उसने सारी चीजों को तख्लीक किया है, क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन नहीं है, वो खालिक है, वो मखलूक नहीं है। इसलिए उसको अब्दियत का बाप कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर मुकद्दस पौलुस वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि क्योंकि उसी ने सब चीजें पैदा की गई। हर एक चीज क्या की गई है? आसमान की हो या जमीन की, आसमान पर भी जितनी चीजें हैं और जमीन पर भी कितनी चीजें हैं, ये सारी किसके लिए पैदा की गई और किसने पैदा की है? ये खुदा यीशु मसीह ने। उसको कोई रियासत नहीं चाहिए थी, उसको कोई हुकूमतें नहीं चाहिए थी, उसको कोई तख्त नहीं चाहिए था, उसको कोई इख्तियार नहीं चाहिए था। जो खुद इख्तियार का कुल हो वो किसी को दूसरा कोई उसको क्या इख्तियार दे सकता है? उसके पास तो हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है, उसमें पोशीदा है और वो देता भी है फरावानी के साथ। हालेलुया। मैंने ये बात कही कि इससे पहले कि टाइम शुरू होता, इससे पहले कि इब्तिदा होती, इससे पहले कि कायनात को खलक किया जाता, खुदा इससे पहले भी मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। तस्लीस मौजूद थी। हालेलुया। कहा जाता है कि जो चीज वक्त में बनती है वो वक्त में ही खत्म हो जाती है। जो चीज वक्त में बनती है वो वक्त में ही खत्म हो जाती है। जो चीज वक्त में बनती है वो वक्त में ही तबाह हो जाती है। ये कायनात जिस तरह मैंने पहले बताया ये वक्त में बनी है और वक्त में ही तबाह भी हो जाएगी। लेकिन हमारा खुदावंद जो कलाम में बयान करता है वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत का इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी पहली जो आयात है उनको पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मैंने ये बात कही कि वो इब्तिदा की इब्तिदा और असल की असलियत से पहले मौजूद था। हर इब्तिदा का आगाज होता है, शुरू होता है। इब्तिदा से पहले भी कुछ शुरुआत हुई होती है, इब्तिदा से भी। अब हमने 9 बजे इस संडे सर्विस का क्या आगाज किया, लेकिन संडे सर्विस से पहले 9 बजे से पहले हम कहीं पर और भी एक्सिस्ट करते थे, मौजूद थे। तो मतलब ये कि मीटिंग का आगाज हुआ है, हमारा आगाज नहीं हुआ है। मीटिंग का आगाज हुआ है, हमारा। अब हर इब्तिदा जिसका शुरू भी होता है, लेकिन यीशु नासरी ऐसा है जिसका शुरू नहीं है। वो असल से, वो इब्तिदा की इब्तिदा और असल की असलियत से पहले मौजूद है। इस सेंटेंस को जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं तो इसके ऊपर ईमान ले आए। और आपका ईमान इस तरह होना चाहिए कि जब कुछ भी नहीं था तो तब भी यीशु था, और जब कुछ भी नहीं होगा तो तब भी यीशु होगा, क्योंकि वो इब्तिदा की इब्तिदा और असल की असलियत से पहले मौजूद है। मैंने ये बात बताई कि जो चीज टाइम में बनती है वो तबाह होती है, वो खत्म होती है। यीशु मसीह को किसी टाइम की जरूरत नहीं थी, बल्कि जब वो उसने कुल कहा है और जब उसने खुदा ने कहा है कि रोशनी हो जा, तो जब वो रोशनी बाहर आई है तो तब ही टाइम फ्रेम शुरू होना शुरू होगा। ये कैलेंडर जो रोमन कैलेंडर है उसका तब ही आगाज हो जाता है, तब टाइम और वक्त शुरू होगा, वक्त शुरू हो जाता है। जिससे हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले इतने दौर में ये काम हुआ था, कबल मसीह ऐसा हुआ था। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब रोमन कैलेंडर जो है, रोमन कैलेंडर जो है वो शुरू हो गया। जब भी देखते हैं 2000 का कैलेंडर है,
2000 साल पहले आगाज हुआ इसका और वहीं से दुनिया चल रही है। जब ये कहते हैं कि आज 2021 साल गुजर चुके हैं यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए, तो वहां से ही इसका आगाज हुआ। बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के साथ दें। अब बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कही फकी फरीसियों से, और खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि इससे बेशतर कि अब्राहम था मैं हूं। इससे बेशतर, इससे कबल कि अब्राहम था मैं हूं। मसीह यीशु ये कहा कि अब्राहम था, लेकिन मैं उससे पहले मौजूद था, बल्कि उससे पहले भी मौजूद था। और यही बात साबित करती है कि हमारा खुदावंद अब्दियत का बाप है। हालेलुया। और हम एक ऐसे खुदा की प्रस्तुति करते हैं जो जमानों और वक्तों की कैद से आजाद है, जो जमानों और वक्तों की, हम एक ऐसे, क्योंकि जो भी वक्त में चीज आती है उसका खात्मा होना लाजमी होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खात्मा इसलिए नहीं हो सकता है, वो खत्म इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो वक्तों और जमानों की कैद से उबर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? अभी बड़ी खूबसूरत बात, ये बार बार मैं इसी के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं? किसी स्कॉलर ने बहुत बड़ी खूबसूरत बात की जो रात को जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिल पर चोट लगी और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी। खुदा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक ऐसा पर्सन बनाया जो यीशु की इबादत करता है, जो खुदा सलूस को मानने वाला है, जो सलूस की नहीं बल्कि खुदा सलूस की प्रस्तुति करता है। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत बात जिस स्कॉलर ने कही, और बात यह है कोई चीज या कोई शख्स या कोई शख्सियत, कोई चीज या कोई शख्स या कोई शख्सियत चाहे असली हो या ना हो, चाहे असली हो या ना हो, लेकिन अगर उसका तकवा, उसका ईमान या उसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है तो वो असली हो या ना हो पर वो आपकी जरूर हो जाती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जुबान मुबारक से अल्फाज कहे कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा था कि आप असली नहीं है, लेकिन आपका ईमान मुझ पर है, आपका तकवा अगर मुझ पर है, तो अगर आप असली नहीं है लेकिन आप अब्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब्दी हूं और मेरे मानने वाले भी अब्दियत में दाखिल होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे मसीही बहन भाइयों, आप कभी मर कर नहीं मरेंगे। और जिनको शक है कि क्या हम जन्नत में जाएंगे, तो मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूं, अगर आपका ईमान यीशु मसीह पर है, अगर आपने उसके कलाम की बातों को गले का तोक बना लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को मुकम्मल अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो असलियत तो आपके पास आ नहीं सकती, लेकिन यीशु को कबूल करने के बाद अब्दियत के आप फरजंद हैं, आप अब्दियत में दाखिल होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको एक रिटन सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप अब्दियत में दाखिल होंगे, क्योंकि जहां पर यीशु होगा वहां पर उसके फॉलोअर्स भी होंगे। हालेलुया। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन टल सकती हैं, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हर किसी ना